أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. جی آپ لوگ رسپانس کرتے ہیں نا تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ میری آواز، میری تصویر، میری سلائیڈ ہر چیز آپ تک پہنچ رہی ہے. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. اچھا جی، آج ہم آپ سے حال احوال پوچھتے ہیں عربک میں. کیف حالک یا کیف حالکم؟ الحمدللہ الحمدللہ بالخیر. الحمدللہ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں انا بالخیر. بخیر. انا بخیر. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ آپ کو اسی طرح سے خیر و عافیت کے ساتھ رکھے. الحمدللہ. ہمارا گرامر پورشن جو ہے وہ ابھی آج کل صرف ریویژن پہ چل رہا ہے نا. اور جو اے پارٹ ہے اس میں ہماری آیات الحمدللہ آج ہمارا چوتھا صفحہ کمپلیٹ ہو جائے گا. یعنی کہ آج ہم صفحہ نمبر 4 اشارہ ڈی پڑھ لیں گے. ایک دفعہ سب مل کر کہیے الحمدللہ. کہاں ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا اور آج الحمدللہ یہ تیزی سے اپنی منزل یعنی اختتام کی طرف گامزن ہے، رواں دواں ہے. اور الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہمارا ٹاپک ہدایت کا، جس میں متقین، کافرین، منافقین، دعوت القرآن، چیلنج، وعید و بشارت، یہ تمام کے تمام ٹاپکس ہم نے پڑھ لیے. ان کو اس طرح سے سمجھ لیا جتنا ہم نے QC1 اور QC2 میں گرامر کی ان کو اسی حساب سے ہم نے اسماء، افعال، چابیاں وغیرہ جو بھی تھا سب کچھ ہم نے اسی طرح سے گرامر کے ساتھ ساتھ سیکھ لیا. انشاءاللہ منڈے سے ہم حضرت آدم علیہ السلام جو کہ پہلے انسان ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے ہدایت نصیب فرمائی، تو اب یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا یہ جو پہلے والے 4 جو صفحات ہیں یہ آج کمپلیٹ ہوں گے. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جو گرامر پورشن میں ہم زیادہ تر افعال وہی کر رہے ہیں جو ان میں الفاظ یوز ہوئے تھے. اب جیسے سسٹر حفصہ بھی بتا رہی تھیں کہ پورے ٹیبل بنا لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو بیچ میں سے کوئی صیغہ دے دیا جاتا ہے نا، ابھی تو 6 چابیاں جیسے اب سمجھ لیجئے کہ راجا یرجیو، بیچ میں سے آپ کو ترجیونا وغیرہ دے دیا جاتا ہے تو وہ فوراً کلک کر جاتا ہے. اچھا یہ تھا اور اس کا ماضی یہ والا تھا، ہم نے اس کو بعد پہ بنایا تھا، اس کے را جیم عین، کیونکہ ترجعونا سے ذرا نکالنے تھوڑے سے مشکل ہے. لیکن اگر ہم ماضی پہ چلے جائیں، اس کے پہلے والے صیغے پہ چلے جائیں تو صحت مند افعال میں یہ بڑی جو آسانی ہے وہ یہ کہ جو پہلا آپ کا صیغہ ہوگا وہی آپ کے روٹ لیٹر ہوں گے. الحمدللہ. تو اس طرح کی چیزیں ضرور آپ کیا کریں تاکہ انشاءاللہ ہم اگلے کورسز میں ان کو ہمیں اس طرح سے نہ دہرانا پڑے بلکہ یہ ہمیں فٹافٹ سے یاد آیا کریں چیزیں. یہ دیکھیے جی ہمارے 5 پیج اب تک الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے اپنے یہ لیول کس طرح سے آگے ان کو لے کے جانا ہے. کس طرح سے ہم نے 5 پیجز پڑھتے ہوئے پہلے دایاں ہاتھ، پھر بایاں، پھر دایاں، اس کے بعد پھر بایاں، اور اس کے بعد QC6 میں ہمارے دونوں ہاتھ مسلسل یوز ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا جی، کون سے اشارے تھے؟ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت، متقین کی صفات، سوری یہاں پہ طرف کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف، اور 2 رخے. آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج، اور اس کے بعد ہم نے کیا تھا وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون. آج کا ہمارا اشارہ ہے کفر کیسے. وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. آپ بھی اس کو ایک دفعہ دوہرا لیجیے. وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. کفر کیسے. اچھا جی، میں نے آپ کو ایک چیز کہی تھی کہ آپ لوگ ہائی لائٹر سے اس کو ساتھ ساتھ ریلیٹ کر لیا کریں. اب کتنا ایزی ہو جائے اگر ہم وعید و بشارت کے ساتھ
फत्तकुन्नार, और इसी तरह से बशीर को हम अगर कर लेते तो हमारे जहन में आ जाएगा कि एक वईद है, डरने की बात है, और एक खुशखबरी है। इसी तरह से बाउदा को कर लेंगे, मसलम बाउदा, तो हमें याद हो जाएगा मच्छर की मिसाल। उसके बाद आप देखें कि यहदी हिदायत, और जो इसके साथ हमने ये जो फासिकीन वाला, इन दो को कर लें। नहीं, इधर से यनकुदूना जो तोड़ते हैं अल्लाह के वादे को, इसमें आप यनकुदूना और खासिरून, इनको अगर कर ले, क्योंकि ये अल्फाज नहीं आ रहे ना गुमराह कौन वाले, इस तरह का अल्फाज इसमें इस्तेमाल नहीं हो रहे। लेकिन जब हम कैफा तकफुरून पर पहुंचेंगे तो कैफा कैसे तकफुरूना, इसको हम कुफ्र से रिलेट कर लेंगे। तो इनको इस तरह से हाईलाइट कर लिया करें, साथ इसका इशारा नंबर ABCD लिख लें, ये आपको बहुत काम में आ जाएंगी चीजें इंशाल्लाह। हम लोग QC2 में थे तो हमें ये चीजें इस तरह से पता नहीं थी। हमारी बुक्स बिल्कुल ऐसे हैं जैसे हमको कभी टच भी ना किया हो, इतनी साफ सुथरी किताबें, हमें पता ही नहीं था कि हम इनको इस तरह से अगर इसके ऊपर टुकड़े लिख लें, इनसे चीजें लिख लें। हमने अलहदा नोट्स बनाए हुए, अलहदा रजिस्टर। अब वो जब दोबारा से हम बुक्स खोलते हैं, हमें वो चीजें उस तरह से रिकॉल नहीं होती। अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीजें हमें वैसे ही याद हो गई। कुछ ये कि रिविजन करवा के पढ़ा के फिर बार बार इनको रिपीट करते, इतनी रेपिटेशन होती है कि ये याद हो जाती है। लेकिन अगर आप बुक पे लिख लेंगे तो उसका फायदा बहुत है। अच्छा जी, इसके मुख्तसर इशारे हैं, वईद, मच्छर, गुमराह, कुफ्र। ठीक हो गया जी। तारुफ में हम देख लेते हैं, ये हमारा चौथा इशारा है, कुफ्र कैसे। पिछली जो गुज़श्ता आयात हैं, थोड़ा सा उसको हम लिखी भी हुई है सामने, कुछ हमने उस दिन पढ़ा था मंडे को, तो उसके बारे में हम देखें कि क्या बात हो रही थी, या उससे पिछली हमने जो कुरान की दावत वगैरह वाली जो सारी चीजें पढ़ी हैं। कुरान की दावत को बयान करते हुए अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ उसी की इबादत का हुक्म दिया। जब हुक्म दे दिया उसके बाद फिर हमें बताया भी कि अगर नई इबादत करते तो उसमें हमारा कितना नुकसान है, अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वालों के साथ क्या क्या नुकसान दुनियावी और आखिरत में पेश आ सकते हैं। अब अल्लाह ताला इन्हीं चीजों को मुख्तलिफ उसलूब और अंदाज में बयान कर रहा है। अब जैसे यहाँ पर मच्छर की मिसाल दे दी गई, अब आगे हमें बताया जा रहा है कि ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं, इससे अल्लाह ताला बहुत से लोगों को हिदायत भी दे देता है, और बहुत से लोगों को जो नाफरमान हो उनको इससे ये हो जाता है कि हिदायत नहीं मिलती बल्कि गुमराही की तरफ चले जाते हैं। आज का जो हमारा लेसन है, इसमें असबाब क्या है कि हम अल्लाह ताला के साथ कुफ्र नहीं कर सकते। हमारा जीना मरना, हमारा दोबारा जी उठना, सब कुछ अल्लाह ही के हाथ में है। हमें अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। आदम आरामदेह जिंदगी गुजारने के लिए जरूरत की तमाम चीजें अल्लाह ताला ने ही अता की हैं। अल्लाह ताला को हर चीज का इल्म है, यहाँ तक कि वो हमारे ख्यालात, हमारी सोच, हमारे आमाल सब कुछ जानता है, सब कुछ देख रहा है। तो यहाँ पर हमें किस चीज की जरूरत है, वो जो हमने एक आयत मुबारका सूरह फातिहा में पढ़ी थी कि मालिकी यौमिद्दीन, हमें पता होना चाहिए कि एक दिन ऐसा है हमें अल्लाह ताला के पास वापस जाना है। वो कौन सा दिन है? वो जजा का दिन है, बदले का दिन है। तो हमने जो भी काम करना है वो आखिरत को देखते हुए इसको प्लान करना। आज हम प्लान में भी इस बात को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं जी, हमने कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि जो अल्फाज आपको आते हैं, कोई भी सिस्टर थोड़ी सी कोशिश करें उसको तर्जुमा करने की। जरूरी नहीं है कि वो तर्जुमा बिल्कुल उसी तरह से हो कि उसमें रवानी भी हो और वर्ड टू वर्ड ठीक हो। सिर्फ हमने देखना है कि जो जो अल्फाज हमारे पढ़े हुए हैं, क्या हम उनको इसी तरह से तर्जुमा कर सकते हैं। अगर एक आयत मुबारक हमारे सामने आ जाए जी, कौन करना चाहेगा? मैं करूं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। एक आयत का आपका, अगर दो सिस्टर ने कहा तो एक आयत मुबारक आप कर लीजिए, एक दूसरी सिस्टर करेंगे। जी ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैफा, कैसे, तकफुरूना, तकफुरूना, हाँ, जो भी मतलब आता है आप इसका। हाँ हाँ, आप कुफ्र करते हैं बिल्लाही, अल्लाह से, वकुंतुम, और वो सब, अमवातन, मौत दिए जाएंगे या मौत उनको मिलेगी, फाअहयाकुम, फिर उठाए जाएंगे, सुम्मा फिर युमीतुकुम, फिर मारे जाएंगे, सुम्मा फिर युहीकुम, जिंदा किए जाएंगे, कुम कुम जो है जमीर वो सब की आ रही है, सुम्मा फिर इलैही, उसी की तरफ, तुरजाउन, लुटाए जाएंगे। अब दूसरी सिस्टर हुआ वो, अल्हम्दुलिल्लाह, जी जज़ाकल्लाह। जी जी ठीक है, सही, जज़ाकल्लाह। हुवल्लज़ी
وہ हुवल्लज़ी वही वो ذات है, खलका जिसने पैदा किया, लकुम तुम सबके लिए, माँ जो फिल अर्दी जमीन में है, जमीअन सब के सब या सारे के सारे, तुम मस्तवा फिर जो आपने वो नहीं पढ़ा उसको छोड़ दे, जो अच्छा आपने नहीं ठीक पढ़ा है, उसको छोड़ दे। सुम्मा फिर इला समाई तरफ आसमान के, ये भी नहीं पढ़ा, इसको छोड़ दे, सही है, इसको छोड़ दे। सब आसमावात 7 आसमान, ठीक है। जी वह हुआ और वो बिकुल्ली हर चीज पर बिकुल्ली शैइन हर चीज पर अलीमुन जानने वाला है। जानने वाला, ही हमें इल्म से भी याद आ जाता है ना, और हमने आलिमा का टेबल भी किया था ना, उसने जाना, अलीम जानने वाला। जी तो क्या जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इससे क्या हमें पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे सामने कोई आयत मुबारका आएगी तो सिवाय नए अल्फाज के हम उनका तर्जुमा खुद ब खुद बनाने के काबिल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब हम ऐसा करते हैं कि इसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, तर्जुमा भी हम देखेंगे, और हमने ये भी देखा कि कोई ज्यादा अल्फाज नए नहीं है, 2 4 2 3 तन के 3 की एवरेज होती है कि 3 अल्फाज ज्यादा से ज्यादा हमारे पास नए होते हैं। अच्छा जी, अब इसमें हमने और क्या करना है, हमने देखना है कि कौन से फ्रेज है, फ्रेज के हिसाब से उसको देख लेंगे। हम पहले ऐसा करते हैं कि इसकी तिलावत कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون। पहले इतने को कैफा कैसे, कैफा हमने पहले कहाँ पढ़ा है, या हमें वैसे याद हो कि हमने इसको पढ़ा हुआ है, कुछ जहन में आता है कैफा, कोई कुरान अलम तरा कैफा, अलम तरा अलम कैफा। ये होता है कि हमें कुरान मजीद हमारी किताब है, और इससे पता भी हमें ये चलता है, और हमें ये खुशी भी होती है कि हम शनासा हैं इन अल्फाज से। ये हमारे लिए कोई बहुत अजनबी चीजें नहीं आ जाती। ठीक हो गया जी। तकफुरूना, सिस्टर ने कहा कि काफरा वाला टेबल, हाँ जी, इसको काफरा यकफुरू। अब तकफुरूना कहाँ पे आ जाता है, यकफुरू यकफुरूना, तकफुरू अकफुरू तकफुरूना, सामने, इससे ये अंदाजा हो गया फेल मुदारे है, वाव नून की वजह से पता चल गया ये जमा है, और इसमें ये भी पता चल गया कि ये पेश वाला है, तो ये यकीनन मौसूरा के टेबल पर जा रहा है। बिल्लाही, बी और अल्लाही, हम अगर टुकड़ों की बात करें साथ साथ तो टुकड़े भी देख लेते हैं, बिल्लाही 2 टुकड़े। इसके बाद है व कुंतुम। अब ये वाला जो वा है ना, यहाँ भी आप देखिएगा इसका तर्जुमा हालांकि से किया गया है। ठीक हो गया, हमने 3 तर्जुमे पढ़ लिए ना वा के, वा का माना और है, वा का माना कसम है, और हमने 2 जगह पर इसे एक अंदातम वाला था और एक गालिबन और थी हमारी आयत मुबारक, उसको इसी तरह से याद कर लीजिएगा कि हमने इनका तर्जुमा हालांकि वाला पढ़ा है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, वो कुन तुम कहाँ से आया है, कुन तुम काना की टेबल से। काना के टेबल में फिर ये सामने वाला तुम थे। ठीक हो गया जी, ये माजी का, ये माजी का है, कौन से अब हमें निकला कितनी बातें सही। यहाँ से पता चल जाती हैं। ये काना वाला टेबल है, काना वाला टेबल नौसरा से आया है, इसका मेन बाब कौ था यानी कि कौला था, और इसके बाद हमें ये अंदाजा हो गया कि ये माजी है। इसके बाद हमें पता चला कि ये सामने यानी कि जो हाजिर में जमा वाला इशारा हो गया। ठीक हो गया जी। इसके बाद है वकुंतुम अमवातन, अमवातन। अच्छा जी, अरबिक में जो भी चीज जिसमें जान नहीं होती ना उसको बेजान ही कहा जाता है, यानी कि हम पहले बेजान थे, फिर इसके बाद क्या हुआ, फा। अब फा वही वाला फिर तुम। अब ये जो चीज है इस पे भी आपने गौर करना है, फा अहिया कुम। ठीक हो गया जी। अहिया कुम यानी कि इसको जरा पीछे लेके जाते हैं, हम ज्यादा आगे। अच्छा जी, ये हम यहाँ पर थे, फा एक टुकड़ा, बस अहिया उसने जिंदा किया। हमने भी इस तरह के अफाल किए नहीं है, लेकिन हमने थोड़ा सा इस तरह से समझा था, जहां पर आ वाली बात आ जाए अहिया
उसने जिंदा किया, अखरजा उसने निकाला। तो ये उसी टाइप का, उसी किस्म का एक फेल है। इसको अब अभी हम नहीं करेंगे इस तरह के अफआल, ये हम इंशाल्लाह किसी फ्री में कर लेंगे इनको, तो फिर और मजीद बेहतर तरीके से हमें समझ भी आ जाएगा। कुम क्या है? कुम है, जैसे हमने पूरे पूरे टेबल बनाए थे ना, तो उसमें हमने कुम जो सामने की तरफ इशारा किया था, जैसे रब, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, ये जो कुम था ये वही वाला कुम है। फिर उसने जिंदा किया तुम सबको। इसके बाद फिर क्या है? सुम्मा। सुम्मा हम कहाँ यूज करते हैं ज्यादातर? जब हम कहते हैं आमीन, सुम्मा आमीन, यानी कि दोबारा से फिर से हम एक मरतबा कहते हैं कि ये हमारी दुआ कबूल हो जाए, फिर दोबारा से हम कहते हैं कि कबूल हो, फिर दोबारा, इसके माना इस तरह से आ जाया करते हैं। युमीतु, फिर से दो टुकड़े बना के बताया गया कि युमीतु वो मौत देगा, युमीतु, इस तरह के अफाल इंशाल्लाह ये भी हम करेंगे। क्योंकि अभी हमने किया है माता या मूतू, मिलता जुलता उससे ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। ठीक हो गया जी। युमीतु कुम, कुम फिर से उसी तरह से एक अलग टुकड़ा बन गया। सुम्मा युमीतु कुम, फिर वो मौत देगा तुम्हें। अच्छा जी, हमने ना QC1 में थोड़ा सा टच किया था, हमने एंड वाला जो लेसन था 20 लेसन, जिसे हम कहते हैं कि आपके फाइनल में इंक्लूड नहीं है, उसमें हमने इसी तरह से अफाल के साथ कहीं कहीं अस्माओ जो थे ना, जमायर थे, यानी कि प्रोनाउंस थे, उनको जोड़ा था। ये उसी तरह से है। उसमें जैसे नौसारा था तो रा चूंकि जुड़ती नहीं है हु से या किसी भी चीज से जुड़ती नहीं है ना, तो वो थोड़ा सा देखने में अलग हो जाता है। लेकिन जब अफाल जो जिनके आगे अल्फाज जुड़ जाते हैं, तो उनके साथ फिर ये जमायर इसी तरह से जुड़ के आ जाते हैं। ठीक हो गया जी। सुम्मा, अब ये भी इसी तरह से, जैसे युमीतु अलहदा था, युहयी भी अलहदा है। ठीक है, फिर वो दोबारा जिंदा करेगा तुम्हें। कौन करेगा जिंदा? किसकी बात हो रही है? अल्लाह की। अल्लाह अल्लाह ताला। सुब्हानहू व तआला। अच्छा जी, उसके बाद है सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, यानी कि सबसे पहले क्या थे? बेजान थे, फिर उसने जिंदा किया, फिर मारेगा और फिर जिंदा करेगा। कैसे? कि जब हम अल्लाह ताला के पास थे, इस दुनिया में नहीं आए थे, तो हमें बेजान तसव्वुर किया गया, फिर अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी, जो ये हम फानी दुनिया, ये जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इसके बाद हम मर जाएंगे, उसके बाद फिर दोबारा से उठाए जाएंगे रोजे क़यामत। ये इस तरह से चार तरह की जो बातें हमारे सामने आ गई। सुम्मा, फिर इलैही, पूरा टेबल हमने किया, इलैही इलैहिम वाला, ये वही टेबल है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। अच्छा जी, तुरजाऊन हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा सीगा है, राजा, ये वाला टेबल है। अच्छा जी, तुरजाऊना, अब ये जो तुरजाऊना है, ये हो गया सामने वाला, इससे मिलता जुलता हमने ये आ भी गया, उमयुन फहुम ला यरजिऊन, ठीक है, इलैहि राजिऊन, ये सारी चीजें मिलती जुलती। अब ये जो जेर जबर का पेश है, इसको हम इंशाल्लाह अपना जो आखिरी लेसन होगा उसमें समझेंगे, फिर हम इनको हाईलाइट भी करेंगे। ठीक है, ये हम उसमें असेसमेंट कर लेंगे, 5D में हम इनको टच करेंगे, देखेंगे, और फिर हम उसमें से ढूंढेंगे अपने पिछले भाग में से कि ये जो फर्क थोड़ा थोड़ा आता है, ये क्यों आता है जेर जबर का। ठीक हो गया जी, मतलब वही है कि तुम लौटाए जाओगे। अच्छा जी, हम खाक थे, अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी। अरबी जुबान में हर वो चीज मैयत है, ठीक है, ये याद रखना है। मैयत कहाँ पे आता है? मैयत, माता या मूतू, मुत, फिर उसके बाद मैयत, फाइल जो मरने वाला। अब मरने वाले का असर किसी पे नहीं पड़ता। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद हमने क्या किया था? मौत। सिर्फ अल्लाह ताला जानता है कि हम कब और कैसे मरेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर कहा करते थे कि लज्जतों को काटने वाली मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करो, याद करते रहा करो। अच्छा जी, अब क्या होता है कि मौत का जिक्र या कयामत का जिक्र इस तरह करते जब बात होती है, तो कहते हैं नहीं नहीं, अल्लाह ताला हमें माफ करे। ये कैसी बातें, इतना जैसे आप समझ लो कोई खुशी का माहौल है, कोई ऐसी बात करते तो सब एकदम से टोक भी देते हैं ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लज्जतों को काटने वाली, यानी कि इस बात को हमें याद रखना है, ये दुनियावी जिंदगी है, ये कुछ एक मुख्तसर सा दौर है। इसको तरह तरह की मिसालों से भी बयान कर दिया जाता है ना, जैसे कहा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो अजान दी जाती है, जब उसने इस दुनिया से चले जाना है तो नमाज पढ़ाई जाती है। बस ये उतना ही वक्फा है, ये उतनी सी जो मुद्दत है, वही इंसानी जिंदगी है, बताने के लिए
कितना ये कलील और मुख्तसर सा वक्त है जिसके लिए हम अपनी जो जिंदगी, जिसमें अल्लाह ताला ने हमें दोबारा जिंदा करना, जिसमें हिसाब होगा, जजा और सजा का फैसला होगा, उसके लिए हम इसको फौकियत दे देते हैं। तो इस पे हमने गौर करना है कि इंशाल्लाह अपनी आखिरत को बेहतर बनाने वाले आमाल दुनिया में रहते हुए करने हैं। हम अल्लाह का इनकार नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जीना और मरना अल्लाह ही के हाथ में है। हम जितना मर्जी इल्म सीख लें, जो भी कर लें, लेकिन ये कि मौत को ना तो कोई जुटला सकता है और ना ही कोई इससे बरी जमा हो सकता है, ना कोई इससे बरी है। हर जीरू को मौत है। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, ये हमने बार बार पढ़ा हुआ, सुना हुआ। हर वो चीज जो सांस ले रही है उसने मौत का जायका चखना है। चखने की बात बता दी जाती कि जो अमाल होंगे उसी तरह से मौत आएगी। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमें एक अपने गुनाहों से बचने के लिए, या जो गुनाह हो गए उसके लिए बड़ी प्यारी सी तस्वीर भी बताई गई है ना, अस्तगफिरुल्लाह की, अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, तौबा करते रहना इंशाअल्लाह। हमें अल्लाह ही के पास वापस लौटना है, इसलिए हम लापरवाही नहीं कर सकते। जब ये वाली चीज को हमने देखना हो तो अपने जहन में सूरह फातिहा की आयत जो है, मालिकी यौमिद्दीन, के वो मालिक है यौमुद्दीन का, यानी कि जजा और सजा, बदले के दिन का मालिक है। तो फिर यकीनन हम अपने अमाल को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा जी, ये एक आयत मुबारक यहाँ कंप्लीट हुई। इससे मुतालिक कोई सवाल है तो वो भी पूछिए, किसी किस्म के कोई टुकड़ों का या किसी माना में, किसी शरह में कोई भी चीज आपको कंफ्यूज कर रही हो वो भी पूछ लीजिए, और एक मर्तबा इसी तरह से लफ्ज ब लफ्ज दोहरा लीजिए। कौन दोहराएगा? जी, मैं ट्राई करूं? जी जी कीजिए। कैफा कैसे, कैफा तकफुरू, शोर आ रहा है। कैफा तकफुरूना, कैसे तुम इनकार करते हो, बिल्लाही अल्लाह का, व कुंतुम, हालांकि तुम थे, अमवातन बेजान, तुम सॉरी अहयाकुम, फिर उसने जिंदा किया तुम्हें, तुम युमीतुकुम, फिर वो मौत देगा तुम्हें, तुम युहीकुम, फिर दोबारा जिंदा करेगा तुम्हें, तुम इलैहि, फिर उसी की तरफ तुरजाऊन, तुम लौटाए जाओगे। तुम लौटाई जाओगे। जज़ाकल्लाहु खैरा सिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, इसमें से कोई किसी का क्वेश्चन तो नहीं है? कोई चीज ऐसी जो समझ में ना आई हो? नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अगली हमारी आयत मुबारक, उसका भी हम तिलावत कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم। वही है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए जो जमीन में है सब कुछ, फिर मुतवज्जो हुआ तरफ आसमान की, बस उसने बराबर कर दिया उन्हें। सब समावात, सात आसमान, और वो हर चीज को जानने वाला है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास तीन ऐसे अल्फाज हैं जो हमने अभी तक पढ़े नहीं है, अब इनको भी देख लेते हैं। हुआ, वो, ये हुआ हम वाला पूरा टेबल हम कर चुके। अल्लाजी, अल्लाजीना, हमारा जाना पहचाना। इसी तरह से खौलाका, खौलाका का हमने पूरा टेबल किया था, खौलाका, खौलाकु, खौलकता, खौलकतु वाला। इसके बाद लकुम टेबल से माँ, जो, माँ के तीन माना, कोई जल्दी से बता दे। क्या नहीं जो। क्या नहीं जो क्या नहीं। अच्छा जी, अब ये दरमियान में ना जरा थोड़ा सा इस बात से भी एक हिंट सा मिल जाता है कि जब दरमियान में आ रहा है तो ये कनेक्ट करने के लिए आ रहा है, तो इसमें माना जो वाला आ गया। और ये हर बार नहीं होगा, कहीं कहीं ऐसा हो जाता है। कॉन्टेक्स्ट हमें बताएगा कि क्या वाला माना करेंगे, जो वाला करेंगे या नहीं वाला करेंगे। ठीक हो गया जी। जो जमीन में है, जमीयन, सब का सब जितना भी है। जमीयन को याद रखने के लिए ऐसे याद रख लें जैसे हम कहते हैं जमा करना किसी चीज का, जमात। इन चीजों से जमीयन का माना आप याद रख लीजिए, सब कुछ। इसके बाद है सुम्मा, सुम्मा को हमने देख लिया। इस्तवा,
अब ये जो इस्तवा है ना, ये भी एक टेबल है, इस तरह के टेबल अभी हमने पढ़े नहीं है, लेकिन इसका माना हम याद रख लेते हैं, मुतवज्जा होना, फिर वो मुतवज्जा हुआ, इस्तवा, ठीक हो गया जी। इला, तरफ, इलैही हमने जो पूरा पूरा मुकम्मल टेबल किया था। समाई, समावात, समा ये हमें पता है, ये हम पढ़ चुके हैं काफी मरतबा। इसके बाद है फा सव्वा, फा सव्वा, यानी कि फा अलग है, सव्वा अलग है। इसके बाद हुन्ना, अभी तक हम कर रहे थे हुआ हुम, ये है हिया हुन्ना, ठीक है, ये मुअन्नस का है। ये हम इंशाल्लाह QC4 में करेंगे। ये जैसे जैसे हमारे कोर्स में अल्फाज जो जो मुअन्नस के आते जाएंगे उनको हम सीखते जाएंगे। जैसे हमने QC1 में हुमा सीख लिया था, हमने कहा था हुआ, हुमा, हुम। इसी तरह से ये है हिया, हुमा और हुन्ना, ठीक हो गया जी। ये मुअन्नस के लिए हुम की जगह पर यूज किया जाता है। सब आ, 7 समावात, ये समा की जमा है समावात। ये समावात तीन क्यों है? क्योंकि हमने कहा कि समावात तन हो ही नहीं सकता, समावात तुन होगा या समावात तीन होगा जब हम इसकी जमा बनाएंगे। ये मुअन्नस की जमा ऐसे बनती है, ठीक हो गया जी। आगे है वा और हुआ वो बी कुल्ली शैइन। अगर आपने टुकड़े बनाने हो तो इसी तरह से टुकड़े बनाइएगा, बी और कुल्ली को अलग अलग कर दें। ये नहीं देखना कि बी तो छोटा सा और कुल्ली उसके साथ ही एक वर्ड होगा, नहीं, बी जो है ये वही है जो हमने बिस्मिल्लाह से और उसका पूरा टेबल बी ही वाला बनाया था। शैइन चीज हम उर्दू में भी यूज करते हैं। और अलीम को याद रखिए, अलीमा से याद रखने, ये अल्लाह ताला का फजलो करम है कि उसने हमारे लिए जमीन को बनाया, फिर उस पर हमारी जरूरत की हर चीज पैदा की। हमें खूब मोहब्बत के साथ उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्लाह ताला ने इंसान को कितना खूबसूरत बनाया, उसका चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, हर चीज को दूसरे जितनी भी मखलूकात से सबसे मुमताज और सबसे अलग कर दिया। देखिए बिस्तर की जरूरत इंसानों को होती है, जानवर तो जहाँ दिल किया जैसे सो जाते हैं, जहाँ उनको थोड़ा सा ईज मिला लेट गए सो गए। इसी तरह से खाना उन्होंने पकाना नहीं, इंसान कितने अच्छे अच्छे तरीके से अच्छी अच्छी डिशेस हम लोग ट्राई करते हैं। यानी कि हर चीज में अल्लाह ताला ने इंसान को जितनी भी मखलूकात थी उनसे फजीलत अता फरमा दी। और इस बात का एक अलग से फिर हम शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, ताकि हम उन लोगों में से ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला ने हमें बाय चांस तो मुसलमान बनाए, अब हम बाय चॉइस मुसलमान बनने की तरफ अपनी कोशिशें करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करें इंशाल्लाह दीन को सीखने के लिए। और इसके साथ साथ जब ये सारी चीजें हम देखें तो क्या करना है, मोहब्बत के साथ अल्लाह ताला का दिल से शुक्र अदा करना है। अल्लाह ताला ने खास हमारे लिए तमाम चीजें मुनासिब अंदाज में पैदा की। सोचिए अगर मिसाल के तौर पर सेब या संतरे मिलीलीटर साइज के होते तो हम इन्हें खा ही नहीं सकते, वो छीलना कैसे था। और आप देखें जितने छोटे फल होते हैं उनको छीलने की जरूरत ही नहीं होती। अब ये जैसे गर्मी है तो फाल्स आपने देखा होगा, चेरीज हैं जो ज्यादा छोटे छोटे फल है, अंगूर है बहुत छोटे नहीं है लेकिन फिर भी उन्हें छीलना नहीं पड़ता। संतरे हैं, सेब है, ये थोड़ा साइज बड़े हैं तो इनको हम आसानी से छील भी लेते हैं, काट के खाते। इसी तरह से जो ज्यादा बड़े फल हैं वो अल्लाह ताला ने कैसे जमीन पर ही इनको बेल की सूरत में उगा दिया। जी सिस्टर आसिया, सिस्टर मुझे हारून। मुझे ये जो लफ्ज है इस्तवा, मतवज्जा का मतलब नहीं समझ आ रही, क्या है इसका मुतवज्जा मतलब? मतवज्जा यानी कि जैसे अल्लाह ताला ने जमीन को बराबर कर दिया। बराबर करने का मतलब ये कि जमीन में जितनी भी चीजें थी, अब आप देखें जमीन ऐसे ऊंची नीची नोकीली, या फिर जैसे वो हम कहते हैं कि जमीन गोल है, उस तरह से फिर हमारे लिए रहना कितना मुश्किल होता। हमें कैसी नजर आती है जमीन, बिल्कुल हमवार। और इसमें अल्लाह ताला ने कितनी चीजें उगा दी, ये सब कुछ करके फिर मुतवज्जा हुआ। अब हम ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह ताला का पहले ध्यान ही नहीं था कि आसमान की तरफ भी गौर फरमाते, बल्कि ये जिस तरह से अल्लाह ताला ने हमें बताया कि अल्लाह ताला ने जमीन को हमारे लिए बेहतर बनाया, और एक आसमान जो हमें जमीन दुनिया का जो आसमान है ना वो हमें नजर आ रहा है कि आसमान है, उसके अलावा फिर अल्लाह ताला ने 6 आसमान और बनाए। इस तरह से टोटल कितने हो गए, 7 आसमान। यानी कि सुम्मा इस्तवा, फिर वो मुतवज्जा हुआ आसमान की तरफ। आसमान में फिर कितनी चीजें बना दी अल्लाह ताला ने, सूरज चांद सितारे, ये हमें चीजें नजर आती हैं। इसके अलावा क्या कुछ है साइंस, आप लोगों ने भी जैसे बहुत कुछ पढ़ा होगा इस पे, बहुत सारी रिसर्चेस भी हो जाती हैं कि ये चीजें कुछ थोड़ा सा एक मरतबा फिर उसको देखिएगा कि ये सारी नेमतें, ये सारा निजाम अल्लाह ताला ने कैसे बनाया,
कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया वही है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए जमीन में जो कुछ है सब कुछ। फिर मुतवज्जा हुआ तरफ आसमान की, क्योंकि इंसान ने कहाँ रहना था, जमीन पे, तो जो जहाँ पे हमने रहना था उसको हमारे लिए पहले बेहतर बनाया, बस उसने बराबर कर दिया। अच्छा जी, हम आगे भी देखते हैं। अल्लाह ताला ने वसी आसमान बनाया जिसमें करोड़ों सितारे हैं और इसके ऊपर 6 आसमान यानी कि पूरे 7 आसमान। इस टुकड़े पर जब हम गौर करें तो हमें अल्लाह ताला की अजमत और हैबत का भी एहसास होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए कितनी मोहब्बत, कितनी मेहनत और कैसे एक पूरा निज़ाम तश्कील दे दिया। तो हमें क्या करना है, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, अल्लाह ताला की इताअत करनी है, अल्लाह ताला की इबादत करनी है, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करनी है कि जिस काम से मना फरमाया गया, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकिर, इस पे हमने पूरा पूरा अमल करना है। अल्लाह ताला तमाम मखलूकात की हर हरकत, हर ख्याल से वाकिफ है। यानी कि इंसान जितना मर्जी इल्म सीख के आगे बढ़ता जाए, क्या से क्या अब हम देखते हैं कि आज से कुछ अर्सा पहले वाली जिंदगी पर गौर करें और आज की जिंदगी सहूलियात पर गौर करें, तो कहते हैं ना कि आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हम जब सोचते हैं ना तो देखें, ये इंसानी दिमाग जिसको अल्लाह ताला ने बनाया, हम इतना कुछ कर लेते हैं, और जो साइंसदान वगैरह क्या कुछ करते हैं, अपनी जितनी भी सहूलियात देख लें। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि घरों में हर चीज का ऑल्टरनेट भी आ गया, चीजें तो बनी थी। और अल्लाह ताला क्या है, अल्लाह ताला मखलूकात की हर हरकत, हर ख्याल से वाकिफ है। यानी कि इंसान को इल्म अल्लाह ताला ने दिया, तो अल्लाह ताला खुद कितना अलीम है, बेहिसाब जानने वाला है। ये सारी चीजें जब हम सोचते हैं ना तो खुद ब खुद दिल से शुक्र अदा होता है। अच्छा जी, यहाँ से अब कौन इसको करेगा, एक एक लफ्ज का तर्जुमा कर लीजिए, फिर हम उसके बाद इसको देखते हैं इनमें अफ़आल वगैरह कुछ। जी जी मेरा थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। आप जमीयन के बारे में कुछ कह रही थी ना? जमीयन सब, मैंने कहा था इसको याद रखने के लिए, जमीयन ये जो लफ्ज है इसको याद रखने के लिए, जमा जैसे चीजों को जमा नहीं करते, उसको अच्छा अच्छा याद रख ले, अच्छा जमात को याद रख ले, फिर जमीयन का माना याद हो जाएगा कि जमीन में जो कुछ है अच्छा जमीयन सबका सब। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, जज़ाकल्लाह। बाकी ये जो अल्फाज है ना, इस्तावा, सव्वा, ये अफ़आल है। ये हमने अभी पढ़ने नहीं है, तो इस पे हम ज्यादा गौर नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, इनके तर्जुमे याद कर लेंगे, ठीक हो गया। ये जब हम इस तरह के अफ़आल को करेंगे ना, फिर क्या हम दोबारा से रिकॉल करेंगे, हमने छोड़ नहीं देना। हम दोबारा से देखेंगे कि हमने पहले पारा में ये जो 5 पेजेस से क्या क्या पढ़ा था। जी सिस्टर साइमा, सिस्टर कमर, आप लोग के हैं एंट्रेंस में बारी बारी पूछने जिसको जो पूछना हो, या अगर आप ये करना चाह रहे हैं, तर्जुमा करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रही हूँ। जी जी कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुआ वही है अल्लज़ी जिसने खलाका पैदा किया, लकुम तुम्हारे लिए, माँ जो फी में, अल अर्ज़ी ज़मीन में है, जमीआ सब कुछ। तुम फिर अस्तवा मुतवज्जो हुआ इला तरफ अस्समाई आसमान के, फसव्वाहुन्ना पस उसने बराबर कर दिया उन्हें, सबआ 7 समावात आसमान, वह हुआ और वही बिकुल्ली, और वो बिकुल्ली साथ हर चीज के, बिकुल्ली साथ तमाम शय इन चीजों के अलीम जानने वाला है, और वही तमाम चीजों का जानने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये सारा का सारा तर्जुमा हम देख चुके, तर्जुमा हम छोड़ते हैं कि हमने इसको लफ्जी भी कर लिया, रवानी के साथ भी कर लिया। असबाब दोबारा देख लेते हैं। हम अल्लाह ताला के साथ कुफ्र नहीं कर सकते, यानी कि हम अल्लाह ताला का इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जीना मरना और हमारा दोबारा जी उठना सब अल्लाह के हाथ में है। हमें अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है, इस बात को याद रखना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आराम से जिंदगी गुजारने के लिए जरूरत की तमाम चीजें अल्लाह ताला ने ही अता की हैं। अल्लाह ताला को हर चीज का इल्म है, यहाँ तक कि हमारे ख्यालात, सोच और हमारे आमाल को वो अच्छी तरह जानता है। कहते हैं अल्लाह ताला हमारे शेर के भी करीब है ना, तो इस बात को हमने याद रखना है इंशाअल्लाह। अच्छा जी, ये आयात को पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, हम अपने लिए एक दुआ मांगते हैं। वो आज की दुआ क्या है कि ए अल्लाह, हमें अपने ईमान में ज्यादती की नीयत से तेरी मखलूकात में गौर करने की तौफीक अता फरमा।
हमारे दिलों को अपनी अजमत से भर दे और मौत को हमेशा याद रखने की तौफीक अता फरमा। अच्छा जी, प्लान क्या होना चाहिए कि इंशाअल्लाह मैं आसमानों और जमीन के पैदा किए जाने पर गौर करूंगी कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये क्यों बनाई। आसमान नहीं होता तो क्या होता, ये जमीन ऐसे सीधी हमवार ना होती तो क्या होता। तो इस पे हम इंशाअल्लाह गौर करने की कोशिश करेंगे। आज के जो हमने आयात पढ़ी है उसमें से अस्मा और अफ़ाल को देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने पढ़ा है मैयत, मैयत अमवात। उर्दू में हम किसका करते हैं जमा? अमवात। उर्दू में भी हम एक जमा पढ़ते हैं ना, हम किसकी जमा को कहते हैं? अमवात। मौत की मौत की जमा को। यहाँ पे हमने क्या करना है? हमने मैयत की जमा को अमवात करना है। ठीक हो गया जी। और जो अरादी, मैयत क्या है? इसमुल फाइल, यानी कि जो मरने वाला है। ठीक हो गया जी। अमवात क्या है? जो ज्यादा लोग मर गए। और जो अरादी, समा, समावात, शई, अशिया। अच्छा जी, ये जो मैयत है ना, मैयतूना, मैयतीना, ऐसे भी बन जाएगा और इसकी जमा मुकस्सर भी बन जाएगी। इसको हमने याद रखना है। अच्छा जी, टेबल कौन से थे? कफरा, यकफुरु, उकफुर, काफिर, मकफूर, कुफ्र, रजा, यरजिउ, इरज, राजि, डैश, रुजू, खलक, यखलुकु, उखलुक, खालिक, मखलूक, खल्क। ये सारे के सारे हमारे पहले पढ़े हुए हम कर चुके हैं। इसी तरह से काना का टेबल हमने किया हुआ है। काना, यकूनु, कुन, काइन, डैश, कौन। अगर काना के साथ हम एक किसी भी टेबल का मुदारे जोड़े तो उसको हमने क्या कहा था? कौन से टेबल होते हैं वो? माजी इस्तमरारी। इस्तमरारी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भूलना नहीं है। ठीक है, ये हमारे काम आता रहे ना, क्योंकि ये इस तरह से यूज होते ही रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारा ये जो कुरान पार्ट कंप्लीट हो गया है। अच्छा जी, आज भी जो है हमारी ग्रामर में अफ़आल का इरादा ही है, जो हम पढ़ चुके हैं, हमने अभी तक पढ़े थे। पहले ऐसे लग रहा था ना, तेजी से हमारा कोर्स आगे जा रहा है, हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ते जा रहे हैं, अफ़आल करते जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है? उनको हम रिवाइज कर रहे हैं। अब ये कौन सी होंगी? ये सामिया, वाहबा, वादा। अब ये जो इस स्टाइल पर आए, हम उनका इरादा करते हैं। अच्छा जी, अल्लाह ताला ने देने का वादा किया। ये तो QC2 वाली होती है, पहले QC1 वाली रिपीट कर लेते हैं। कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी, फतह नफारा, वरना मार पड़ेगी, इसलिए सुन लो द्वाराबा सामिया। बच्चे हैं छोटे छोटे। अच्छा जी, इसमें इसके बाद हमने QC2 में क्या किया? QC2 में हमने किया, अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा, वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, क़ाला ज़ादा, इसीलिए दुआ करो हिदायत की, दआ हदा, अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, ज़न्ना ज़ल्ला। ये हमने याद रखना है। हर बार हम देखते हैं 9000 टाइम अगर हमारे सेहतमंद अफ़ाल यूज हुए तो 9000 टाइम भी कमजोर अफ़ाल कुरान मजीद में यूज हुए, इसीलिए सीखने बहुत जरूरी हैं। इसी तरह से 1300 यानी कि 2 सफ़हात में एक मर्तबा, एक लाइन में एक मर्तबा ये आ जाएंगे, ज़न्ना और दुल्ला जैसे। तो क्या जी, अब हम कर रहे हैं इआदा, तो अब हम चले जाते हैं सामिया पे। सामिया, यस्माउ, इस्मा, सामिउन, मस्मुउन, समउन। सामिया वाले बाब में क्या खास बात है जो हमें माजी में ही पता चल जाता है कि ये टेबल अलग है? इसमें दूसरे उस पर जेर आती है। देर आ जाती है, ये फायदा हो जाता है। यहाँ पे हम ऐसा टेबल देखते हैं ना कि जिसमें आइन कलमा, इसको कहते हैं ना, जैसे फा कलमा, आइन कलमा, लाम कलमा, ये सबको याद है ना? भूला तो नहीं भाई? जी याद है। याद है। अब आइन कलमा है ना, एक दफा प्लीज रिपीट कर दें ये आइन कलमा। कलमा, आइन कलमा, लाम कलमा। हम इसी पे कर लेते हैं, ठीक है? ये जो है ना, इसी पे हम कर लेते हैं ताकि और भी आसानी से समझ आ जाए। अच्छा जी, ये हमारे पास 3 कलमे यानी कि 3 हुरूफ होंगे तो हमारा एक फेल बन जाता है ना। ये हमारा बन गया फा कलमा, आइन कलमा, लाम कलमा। ठीक हो गया जी। और इसीलिए हमने ये जो पहला वाला टेबल फाला किया था ना, ताकि हमें समझ आ जाए, ये रेफरेंस टेबल जो हमने पहला टेबल QC1 में किया था, फाला का किया था।
अच्छा, अब ये जो आइन कलमा है, इसको यहाँ से भी जब ढूंढना है ना, तो इसको हमने फिर या से नहीं शुरू करना, क्योंकि या तो एक निशानी है। किसकी निशानी है? ये मुदारे की निशानी है, ठीक है। हम यहाँ से शुरू करेंगे, फिर ये हमारे इसी तरह से बन जाएंगे, फा कलमा, आइन कलमा, लाम कलमा। इसी तरह से जब हमने करना है इस माँ में, तो यहाँ पे हमने जो अमर की अलग से निशानी उसको नहीं लेना बीच में, हमने इसे ले लेना है, ठीक हो गया जी। ये देखिए, ये बन गया फा आइन लाम। और इसी तरह से अब इसमें से मुझे बताइए किसको मैं कट करूंगी। अलिफ, ये जो अलिफ है ये अलिफ, ज्यादा है, ठीक हो गया जी। ये सीन मीम आइन, ये है फा आइन लाम। ये जो होते हैं ना हमारे सेहतमंद अफाल, इसमें ढूंढने भी आसान होते हैं, क्योंकि इसमें हर जो जितने भी हैं, देखिए 3 अफाल की चाबियां हैं, 3 इसी तरह से अस्मा है, तो उसमें हमें ढूंढने आसान हो जाते हैं। जैसे मफऊलुन में मीम भी निकल जाएगा, वाव भी निकल जाएगी, ठीक हो गया जी। फिर सीन मीम आइन रह जाएगा, और समून तो पूरा का पूरा ही आ जाएगा, जैसे सामिया आया था, ठीक हो गया। अब हम कहेंगे कि आइन कलमा के नीचे जेर है, इससे हमें सामिया वाले जो अबवाब है उनका माजी में ही पता चल जाएगा, ठीक हो गया जी। अब हम इसको भूलेंगे नहीं, इसको इंशाल्लाह ऐसे याद रखना, ताकि जब हम कमजोर में करें तो उसमें भी हमें जल्दी से याद आ जाए कि हमने कैसे ढूंढने हैं। यानी कि रूट लेटर जो होते हैं ना, उसी को उसी हिसाब से हमने इसको लेके चलना है, कोई इसमें नई साइंस नहीं है, कुछ नहीं है। इसी तरह से ये भी हमारा जाना पहचाना आलिमा या अलमु, इलम, आलिम, मालूम और इल्मुन। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। अच्छा जी, अगर यहाँ मैं पूछती हूँ आपसे, अअलमु कहाँ पे आएगा? अअलमु को ऐसे देख के अमर जमा, अमर जमा। अअलमु, आप इसको देखिए, इसको मैं ये मैं जानता हूँ, यालमु आलमु मैं जानता ये हूँ। मैं वाला मुदारे में आएगा, मैं वाला। मुतकल्लिम, ठीक हो गया जी। और ये कहाँ पे आ जाएगा? ये क्या है? अच्छा ये भी बताएं, माजी है या मुदारे है? ये मुदारे है, ये मुदारे है, ये अल्हम्दुलिल्लाह। मुदारे, और और तालमुन तालमुन जो है में वो मुदारा, आप सब जमा। वाला इशारा, ये भी मुदारे है, ये भी मुदारे। मुदारे है, और ये जमा सामने का जमा। इशारा है, और ये जमा, हाजिर का आप है, सब। आप सब वाला। और 2 तर्जमे हो जाया करते ना। ये जो है ना, ये छोटी छोटी सी पहचान, इससे ये फायदा हो जाएगा कि जब हम पुराने पास भी देखेंगे ना इन अल्फाज को, तो हमें फिर वो सारा याद नहीं करना पड़ेगा, याद आ जाएगा। आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना, इसी तरह से मैं सारा ये याद आता जाएगा। इनके बारे में आपसे क्विज वगैरह में या होमवर्क में सवाल नहीं होंगे, ये छोटी छोटी सी बातें मैं चाह रही होती हूँ कि हमें साथ साथ इसकी पहचान होती जाए। अच्छा जी, आमिला भी ये हमने किया, वो आमिल स्वालिहात, आमिला या अमल, अमल, आमिल, मामूल, अमल, ठीक हो गया जी। और ये दोनों बड़े मिलते जुलते भी है ना, ये हम QC1 में इसमें थोड़े से कंफ्यूज भी हो जाया करते थे, तालमूना और तालमूना में कि कहाँ पे लाम पहले लगानी। फिर मैंने इसको ये किया था अपनी, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग बताती हूँ कि जब ये मेरे मिक्सअप हो जाते थे, आप सब जानते हैं और वो सब अमल करते हैं, कुछ इस तरह के जब आ जाते थे, तो मैं इसको कैसे करती थी कि जैसे अब ये या अमलू है, तो मैंने पहले यामालून लिख देना, फिर इसके आगे वाउनून। फिर ये इसमें ये हो जाता था कि मुझे पहचान रहती थी, अच्छा कि यहाँ पर ये आमिला वाला टेबल है, और इसी तरह से ये जो है इसको पहले यहाँ तक लिख देना या लामू तक, फिर इसको वाउ लगानी, क्योंकि वैसे जब लगाती थी वो मेरा अक्सर गड़बड़ सा हो जाता था। तो इसको हम इस तरह से भी छोटी छोटी निशानियों से भी याद रख सकते हैं, फिर ये हो जाएगा कि गलती की गुंजाइश खत्म होती जाएगी। अच्छा, जिसके बाद हमने अपना जो पहला टेबल बनाया था, हमीदा, हमीदा, यहमदू, अहमद, हामिद, महमूद और हमद। हमद, हमद क्या कहते, किसको कहते हैं भला? हमद हम जब अपने स्कूलों में पढ़ते हैं ना, तो शुरू में जब किताबों में उर्दू की किताबें देखें तो हम तारीफ और शुक्र। अल्लाह की तारीफ, तारीफ। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद है खौसीरा। अच्छा जी, इन्नल इंसान लफी खुस्र। खुस्र कौन सा नुकसान है कि असल सरमाया भी डूब जाए, नफा नुकसान तो बाद की बात है, वो तो डूबा ही डूबा जो असल था,
जो असल सरमाया वो भी खत्म हो गया, ये वो वाला नुकसान है। खासिरा यखसरु इखसर खासिर डैश खुस्र, जिसको नुकसान हुआ वो उसी पे ही असर पड़ा, किसी दूसरे पे उसका असर नहीं पड़ा। ठीक हो गया जी, वो नुकसान में हुआ, वो खसारे में हुआ। अच्छा जी, इसके बाद है शाहिदा। शाहिदा यशहदु इशहद शाहिद, मशहूद और शहादा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला से हम याद रख सकते हैं। शहादत वैसे भी गवाही को कहते हैं ना, इसको इस तरह से भी याद रखा जा सकता है। और हमने इसका एक वो माना पड़ा था ना, बुला लो अपने मददगारों को, ये हम पढ़ चुके हैं ना। हाँ, हमने जी पढ़ लिया, बिल्कुल, कुरान शुहदा के को। चैलेंज में हमने पढ़ लिया इसको, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद है आहिदा। आहिदा याहदु इहद, आहिद माहूद और अहद। ठीक है, हमने कहा था इसको अहद नहीं कहना, हमने कहना अहद। यनकुदूना अहदल्लाह, यानी कि जो हमने अपनी आयत पढ़ी थी कि वो तोड़ते हैं अल्लाह के अहद को। अब आपने करना है तर्जुमा यामलूना। वो सब करते हैं या करेंगे? ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम सब गवाही देते हो। तशहदून। 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 क्यों? क्योंकि तुम सब है ना, वो आमिल स्वालिहात, और अमल किए नेक, उन्होंने नेक अमल अपने अमल किया वो नेक। सब नेक अमल कर किया। Yeah. ये वही और उन आमिला सब ने आमिलू। ठीक है, उसने अमल किया, उन सब ने अमल किया। कैसे अमल किए? नेक अमाल किए। ठीक है जी, सामिया पर छोड़े ही हैं। ठीक है जी, माशाल्लाह 7 अफाल हमने किए। ये कुरान मजीद में 1205 मरतबा आए हैं। सबसे ज्यादा जो है ना नसौरा के हैं, और 130 अफाल ऐसे हैं जो कुरान मजीद में तकरीबन 2400 मरतबा आए हैं, और ये सारे के सारे सामिया के स्टाइल पर है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब हम देखते हैं वाहबा के साथ हमने कौन से किए। वाहबा, यहबू, हब, वाहिब, मौहूब, वहब। इसका पूरा टेबल कोई बना ले। वहबा, वहबू, वहबता, वहबतु, वहबतुम, वहबना, वहबत। यहबू, यहबूना, तहबू, अहबू, तहबूना, नहबू, तहबिया, तहब। हब, हबू, ला तहब, ला तहबू। वाहिबुन, मौहूबुन, वहबुन। वहबुन, अल्हम्दुलिल्लाह। वहबुन भी हो सकता है और वहबुन भी हो सकता है। ठीक हो गया जी। अब वाक़ा, इसका भी टेबल बना लीजिए। पूरा बना सकता है कोई? ये टेबल जो है ना, ये थोड़े पड़े हुए ना हमने। वक़अ, वक़अउ, वक़अता, वक़अतु, वक़अतुम, वक़अना, हिया वक़अत। अल्हम्दुलिल्लाह। यक़अउ, यक़अऊना, तक़अउ, अक़अउ, तक़अऊना, नक़अउ। क़ा, लक़, नहीं, क़ा ला ओ, तक, बिल्कुल अब बिल्कुल। हबू, क़ा, क़ा ओ। लक़अउ, ला तक़, ला तक़ू। वाक़िउन, मौक़ूउन, वक़ूउन। वक़ून। अच्छा जी, इज़ा वाक़अतिल वाक़िया। अब ये जो है ना वाक़अ, अब इसके नीचे ज़ेर क्यों नजर आ रही? हमने तो कहा है वक़अता, वक़अतु, ये है मुअन्नस। अब ये मिलाने के लिए ज़ेर लगाई गई। ठीक है, ये था वाक़अत, ये मुअन्नस थी। इज़ा वाक़अतिल वाक़िया, वाक़िया ये जो है ना वाक़िया, वाक़े, ये हो गया इस्मुल फ़ाइल मुज़क्कर, और इसकी जो मुअन्नस हो गई वाक़ियातु। ठीक हो गया। जब हम इसको इस अंदाज से भी आगे लेके जाया करेंगे कि हमने कहाँ पे ये जो हम पढ़ रहे हैं इज़ा वाक़अतिल वाक़िया, तो ये हमारे टेबल में कहाँ फिट हो रहे हैं, इनको हम टेबल में फिट करके देखा करेंगे। अब जैसे वहब, अब ये हब कहाँ से आया है? ये अमर, फिल अमर, फेल अमर। हब। अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होगी ना तो ये बड़ा अच्छा हमें याद हो जाएगा। वहां जैसा हमने एक और भी किया हुआ है। वहां जैसा और कौन सा टेबल हमने जब किया था? वादा, 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 यादाउ, जो हमने अपना पहला टेबल अपने वर्कबुक पे किया था। यहाँ पे मिस है। नहीं, वजदा किया था, वजदा।
नहीं, वाजादा और वादा वो दो अलग थे ना, वादा और वाद। इसके साथ हमने क्या था, वादा, वादा यादाउ दो, हाँ वादी उन मौदून और वादा दाल दुआद वाला वाद, हाँ जी वो जो दुआत के साथ था। अच्छा जी, वहब लना, अब हब को और देखिए, हब दी हाँ, दी और दे दे हमें हमें, और दे हमें। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब हम कर लेते हैं वादा, ये सिस्टर आ गया वो वादा जो आप कह रहे थे। वादा याइदु ईद, वाइद मऊद और वअदुन, आला इन्ना वअदुल्लाहि हक़्क़ुन, जान लो या गवाह रहो, या हमने इसका कहा था कि याद रखो, इस तरह के माना, यानी कि जो तंबीह वाले माना वो आ जाते हैं कि बेशक अल्लाह का वादा सच है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमने ठीक है वाजदा किया था, वाजदा याजिदु जिद, वाजिद मौजूद और वजूद। अच्छा जी, यहाँ पे है वजदना, ये कहाँ से आया वजदना? माजी का माजी, माजी वजदा का कौन सा वाला है? मुजारे जमा, हमारा जमा का सीगा अपने जमा लिए। वाला। हाँ जी, पूरा करें इसका, वजदा 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 वजदू वजद तुम वजदना वजदत, वजदना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और हु इसकी बता रहा है कि इसके आगे एक जुड़ा भी हुआ है ना, एक जमीर जुड़ी हुई है, वो है वही वाली, वो जो अटैच होके आती है ना। यहाँ पे अटैच क्यों नहीं हुई, क्या वजह हुई इसकी? अलिफ के बाद अलिफ के अलिफ बाद है जुड़ नहीं उसमें। सकती, अलिफ के बाद, रॉ के बाद, दाल के बाद, ये जो इस तरह के अल्फाज है ना, फिर इसमें ये फिर क्या आगे जमीरें जुड़ती नहीं, वाव के बाद, ठीक हो गया, इसमें जुड़ती नहीं है। इसी तरह से वासला, वासला यासिलु सिल, वासिल मौसूल वसूल। अच्छा, अगर मैं आपसे यहाँ पे ये पूछूं कि ये किसके जैसे हैं, ये कौन सा मेन बाब कौन सा है, इसका रेफरेंस टेबल तो वादा हो गया, वाउ एन, ये किसके जैसे लग रहे हैं, कौन से बाब पे, अगर हम इसका मेन बाब दाराबा पूछे? दौराबा, दराबा दौराबा कैसे पहचान होती है? इसके जो फिर मदारे है उसके मुदारे सेकंड में वाले पे ये जेर जो है। ज़ेर है, जेर है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको डबल मिलेगा थम्स अप, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने इसको इसी तरह से याद लेकिन रखना, अगर ठीक हम है? माजी में माजी का देखें तो हम ये सॉरी, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम ये याई दो नहीं देखें, सिर्फ वादा को देखें, तो हम ये कैसे डिसाइड करें कि ये दारा बाप पे आएगा, क्योंकि फातिहा पे तो आ सकता है। हाँ, इसको देखने के लिए ना, ये आपको कभी भी ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि एक आपको दे दिया जाए, वादा दे दिया जाए, नौसरा दे दिया जाए, ये दे के आपसे कहा जाए कि आप खुद ही ढूंढे, ऐसा नहीं किया जाता। आपको जब भी पूछा जाए 6 चाबियां दी जाती हैं या 2, यानी कि माजी और मुदारे, ये तो लाजमी होगा, तो फिर ही हम पहचानेंगे ना, ऐसे तो कोई भी नहीं ठीक है, पहचान सकता, एक सिर्फ सिवाय सामिया के, ठीक हो गया। सामिया नहीं जी पहचाना, जी। सॉरी, सामिया पहचाना जाता है, या जो हम अगले कोर्स में इंशाल्लाह QC3 में करेंगे ना, उनके ये होता है कि माजी से पहचान लेते हैं, लेकिन ये कि जो QC1 और QC2 के हैं, ये हमें टीचर बताएंगे, ग्रामेरियन बताएंगे, कुरान पाक बताएगा, या कोई भी किसी से हमें पता चलेगा, ये हमें खुद ब खुद नहीं पता चलेगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें इसका माजी भी पता होना चाहिए और मुदारे भी, क्योंकि देखिए ना, पहचान ही ये है। अब ये माजी में तो 3 एक जैसे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा। हमें कैसे पता चला कि ये फतहा पे है, या ये नौसरा पे है, या ये दौराबा पे है? लेकिन जब हमने कहा फतहा यफ्तहू, अब ये इसकी यफ्तहू जैसी नहीं है, यंसुरु जैसी नहीं है, यदरिबू जैसी है। यदरिबू में ये था कि तमाम अल्फाज थे जो सेहतमंद थे। अब याइदू में क्या था कि हमारा पहला ही जो वाव था वो कमजोर था, तो थोड़ी तब्दीलियों के साथ हमारे पास जो एक नया लफ्ज बन के आया वो था वादा याइदू। ठीक है, कि हम क्लास में सारा इसको खोल के समझ चुके हैं कि इसको कैसे करना है। फिर भी अगर रिकॉल करना चाहें तो दोबारा आप उसी वीडियो को थोड़ा सा देख लीजिएगा, पी पार्ट निकाल के हमने कैसे बनाया था, तो ये समझ आ जाएगा। बाकी ये कि जितना हम इसको रिवाइज करते जाएंगे, रिपीट करेंगे, तेजी से पढ़ेंगे, ये खुद ब खुद हमें याद होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है क्या जी? अच्छा जी, इसके बाद देखिए अब हमारे पास कौन सा टेबल है, वालादा, जो हमने अभी अपनी पढ़ी है, ये जितनी स्लाइड उनमें से तो शायद ये ना आया हो,
لیکن یہ کہ ہم اس کو سورہ اخلاص میں QC1 میں کر چکے ہیں. لم یلد ولم یولد والدہ یالدو لد والد مولود ولادہ. اب ولادت سے بھی پتہ چل رہا ہے اردو میں ہم بات کرتے ہیں اسی طرح سے مولود جیسے کہتے ہیں والدین سے پتہ چل رہا ہے. اور اس کے بعد ہے یالدو والدہ یالدو والدہ اس نے جنا یالدو وہ جنتا ہے لد جن یعنی کہ پیدا کر والد پیدا کرنے والا مولود جسے پیدا کیا گیا ولادت پیدائش. اس کو اس طرح سے اگر آپ پورا ٹیبل بنا لیں گے اپنے اسائنمنٹ کے طور پہ لے لیں تو یہ بڑی اچھی سی چیز ہو جائے گی. اور اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کی آپ مؤنث بھی بنا لیں ان کی جمع بھی بنا لیں ان کو ال کے ساتھ بھی بنا لیں. یہ بہت اچھا سا آپ کا پیارا سا ٹیبل بن جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد ہے وقا واقینا عذاب النار. اب اس کا یہ دیکھیں کتنا پیارا چھوٹا سا ایک ہے فعل امر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عربی زبان اتنی فصیح و بلیغ ہے کہ اس میں ایک چھوٹے سے لفظ کے ساتھ بھی پورا ایک معنی آ سکتا ہے. یعنی کہ جب اس کا کمزور حرف دونوں گرا دیے تو صرف قا رہ گیا قا. اب قا جو ہے یہ ادھر سے نکلا تھا نا یہ جیسے ہم مضارع کا یا گرا دیں اسی طرح سے یہ کمزور حرف گرا دیا جسے اس نے حکم سنا اور سنتے ہی بھاگ گیا. اب باقی پیچھے ہمارے پاس قا بچ گیا. اب اس کے ساتھ ہمیں کوئی حمزہ الف کچھ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی اس کے آگے کچھ نہیں لگانا پڑا یہ پورا پڑھا جا رہا تھا. تو اسی طرح سے اس کو ٹیبل کو بنایا گیا. وقا یقی قی واقن موقیٌ وقایۃ. ٹھیک ہو گیا جی. واقینا عذاب النار اس کو ہم QC1 میں بار بار ٹکڑے بنا بنا کے دیکھتے ہیں کہ وا الگ ہے کی الگ ہے نا الگ ہے تو اس کو اب آپ نے بھول نہیں جانا. ٹھیک ہو گیا اس کو یاد رکھنا ہے. یہ جو نئے نئے کچھ لگ رہے ہیں نا ٹیبل یہ آپ ضرور بنا لیجئے گا. یہ اس کا جو مصدر ہے اس کا مطلب کیا ہوگا بچنا. ہاں جی آنا اچھا سارا ایسا ہی ہوتا ہے نا جیسے وعد وعدہ کرنا اس میں زمانہ آ جاتا ہے نا. صحیح. کام کا کرنا کام کا کرنا ایکشن آ جاتا ہے. زمانہ تو یہاں ہوتا ہے فعل میں زمانہ فعل ہوتا ہے میں نا. زمانہ ہوتا ہے اور اسماء میں یہ ہوتا ہے کہ کام کا کرنا. ٹھیک ہو گیا جی. جی صحیح. وصلہ ولدا وقا. اچھا جی یہی ٹیبل نہیں ہے ایک واقع ایک ولدا اور ایک وقع. ان کے پورے پورے ٹیبل بنا لیجیے گا تاکہ اس کے اگر بیچ میں سے کوئی آپ کو سیگا آ جاتا ہے نا تو آپ کو یہ بڑی آسانی ہو جائے گی. یا آپ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کا پورا بنائیں پورا ٹیبل وہ بنا کے دے دیا جائے کہ آپ اس میں سے اس کو مارک کریں تو آپ بہت آسانی سے آپ کر پائیں گے. تو یہ آپ بنا کے گروپ میں بھیجیے گا انشاءاللہ پھر وہاں پہ چیک کریں گے اس کو. واجدہ سے اچھا ولدا تو اسم بھی ہے نا یا وہ ولد ہوتا ہے وہ جو ولد اسم ہے ہے وہ ولد ہے. ولدن اچھا کہتے ہیں آپ اس کو ولدن ولدن. ٹھیک ہو گیا جی. وہ پھر اچھا جیسے ہم نے کہا تھا ناصرہ اور نصر الفاظ وہی ٹھیک ہیں فتح سے فتح. ٹھیک ہو گیا جی. وہ زیر ٹھیک زبر پیش سے فرق پڑ جاتا ہے. افعال کے اوپر صحیح. کیونکہ یہ نشانی ہے نا کہ اسماء کے اوپر ہی تنوین آئے گی. ہم نے پہچاننا کیسے الف لام سے کیونکہ الفاظ تو ہمارے سامنے دیکھیں لکھے ہی ہوئے ہیں. اب اگر اس کو واجد کے ساتھ ال یا واجدن لگ جائے تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ اسماء ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب آپ اس میں سے ٹھیک. ڈھونڈیے اس میں سے کون سے ہیں تین اسماء کون سے ہیں. واجدن موجودن وجودن. وجودن الحمدللہ. اچھا جی وصل سے افعال پہچانیے. وصلہ یسلو سل. کیا جی الحمدللہ. وجدتم آپ سب نے پایا بھی. الحمدللہ. وہب لنا اور دے ہمیں یہ اور پہلے دے سے ہمیں. ہاں وہ پہلے ہی میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا جی چلیے کوئی نہیں کیونکہ ہم اس کو پیچھے بھی کر کے آئے تھے نا. الحمدللہ یہاں پر آج ہماری کلاس نہیں ابھی تھوڑا سا اور ہے مجھے لگا ختم ہو گیا. اچھا جی یہ تو وہی ہے نا یہ ڈائلگ ہم بار بار کر چکے. آج ہم اس کو الٹا کرتے ہیں. آپ کوشچن پوچھے میں آنسر کرتی ہوں. هل شهدت نعم شاہدتو. هل شهدتم نعم شاہدنا. هل هل تشهد هل تشهد نعم اشہدو. هل هل تشهدون تشهدون
नअम नशहदु। अच्छा जी, हम क्यों करते हैं प्रैक्टिस? ताकि हमें याद रहे कि जब हमने जवाब बताने तो हमने इशारे करने। ठीक हो गया जी? इशारे करने से ये हो जाता है कि हमें चीजें सोचनी नहीं पड़ती। जब हमें खास तौर पे ऑड वन वाले आ जाते हैं, हमारे हाथों से हमें पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। हल समीअतुमुल कुरआना। नाम समिअनल हम कुरआन। समियाना। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी प्यारी प्रैक्टिस है आप लोग की। अच्छा जी, हल समीअतुमुल कुरआना, ये डबल क्यों हो गया? अच्छा जी, हल अंतुम हामिदून। नअम नहनु नाम हामिदून। अना नाम नहनु हामिदून। नहनु ना हामिदून। हाँ, क्योंकि अंतुम के साथ हम फिर अना नहीं करेंगे ना, अंता होता तो फिर आगे भी गौर कीजिए, फिर आगे हामिद होता। हल वादता। नाम वाद नअम नाम नाम वाद हल वादता। वादतुम। नाम वादना। नाम वादना। हल ताइदू। नाम 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 आइदु। आइदु। हल ताइदूना। नाम नाम नाइदु। नाम नाइदु। इद आइदु। आइदु आइदू। ठीक हो गया जी? अपनी तरफ आइदु। वाला है ना। इदू। नाइदु नाइदु। नाइदु। अल्हम्दुलिल्लाह। हल याइदुल्लाहुल मुमिनून। जब ऐसा पूरा फ्रेज आता है ना, तो क्या करना है? हल का आ जाएगा नाम, अल्लाहु अल्लाह, मुमिनीन का मुमिनीन। सिर्फ जी, एक चीज को देखना है, याइदु को। तो अल मोमिनी। क्या करेंगे? याइदु। हाँ जी, याइदु। नाइम याइद। ठीक हो गया जी। इसके बाद हल वजदता। अच्छा जी, आप लोग इसको जरा कीजिए। मैं, मेरा बेटा आ गया, मैं जरा दरवाजा खोल लूं। ठीक है, आप लोग इसको बोल के कीजिएगा, मुझे आवाज आती रहेगी आप। हल मैं सवाल हल करती हूँ। वजदता। हल जी वजदता। ठीक है। नाम नाम वजद वजदतु। हल नाम वजदतुम। वजदतु। नाम नाम वजदना। नाम वजदना। वजदना। नाम वजदना। हल ताजिदु। नाम नाम अजिदु। अजिदु। नाम अजिदु। हल ताजिदूना। नाम 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 नाजिदु। नजिदु। नाम नाजिदु। जिद। अजिदु। 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 जिदु। नजिदु। 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 इसका तर्जुमा करें। हल जी ठीक है, वजदता, तर्जुमा क्या कर आपने अल्हम्दुलिल्लाह। पाया? वजदा कहते हैं पाने को। ठीक है, वजद, वजद आना, पाना, किसी चीज को हासिल करना। जैसे है हल वजदता, क्या आपने पाया? नाम वजद तो मैंने पाया। क्या आप हल सबने? वजदतुम, क्या आप सबने पाया? ठीक हो गया, नाम वजदना हम सबने पाया। नाम नाम वजदना, हम सब ने। जी। अच्छा जी, अब ये मिलाने वाला आ गया। हल वसलता। नाम नाम वसल। वसलतु। नाम वसलतु। वसल। हल वसलतुम। नाम 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 वसलना। वसलना। हल तासिलु। नाम नाम असिलु। नअम असिलु। असिलु। हल तासिलूना। नाम नाम नअम नसिलु। नसिलु। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा जी, ये वही टेबल है जो हम दोहरा के आए, ये सारा वही है। यहाँ पर एक चीज हमें नजर क्या आ रही है? समाअत। ठीक हो गया? ये मस्तर भी हो सकता है। मसादिर जो होते हैं ना, ये चेंज हो भी जाते हैं। जैसे एक ही पैटर्न होगा, बाकी पूरा टेबल उसी सारे वजन पे उसी सांचे में आ रहा है, मस्तर में आकर थोड़ा चेंज भी हो जाया करता है। जैसे इसका खुस्र भी हो सकता है, खुसरान भी हो सकता है, शहादा भी हो सकता है, शुहूद भी हो सकता है। ठीक हो गया जी? इस चीजों को हमने याद रखना है। बाकी सारी चीजें वही है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हम यहाँ पर उसको करें, डिस्कस करें। अच्छा जी, ये पूरे पूरे टेबल, इसको पहचान ले टेबल्स को। ये आपको दे दिए गए हैं इनके मसादिर। अब कौन सा टेबल बनेगा यहाँ? वहबा। साथ साथ लिख लेते हैं। वहबा। यहाँ पर हमारा टेबल बन जाएगा वहाबा। अच्छा, जिसका माना क्या होगा? उसने अता किया। उसने दिया। किसने दिया। दिया? हाँ, उसने दिया या उसने अता किया। ठीक हो गया जी। अब वकू से वक़ा। वक़ा। वक़ा, इसका माना क्या है? वो वो वाक़या। बचा। क्या हुआ? वाक़या वो हुआ। वाक़या हुआ। कहते ना, इज़ा वक़अतिल वाक़िया, जब वाक़या हो जाएगी, वाक़या होने वाली, वो क्या चीज होगी? कयामत। मोहम्मद कयामत। की बात। ये हो गया वादा। और इसका क्या होगा तर्जुमा? उस, उसने वादा किया। किया। उसने वादा उसने वादा किया। किया। अच्छा जी, इसके बाद है वजूद से कौन सा टेबल आएगा? वजदा। वजदा।
वजद वजदा का माना बताइए। उसने पाया। उसने पाया। पाया। ये यहाँ पर मैं माजी वाला तर्जुमा कर रही हूँ, अगर आपका वहां पे लिखा होगा ना कि मस्दर का तर्जुमा करना है तो आप फिर मस्दर का कीजिएगा। ठीक हो गया। वसाला। वसला चलिए इसका वसला अगर इसका मस्दर का तर्जुमा बनाए, मिलाना। ठीक हो गया जी। वलदा वलादा, जनना, पैदा करना। के बाद है बका, बचाना। बचाना बचाना माजी का होगा, उसने बचाया। ठीक है क्या जी। और कोई यहाँ पर मुश्किल चीज नहीं है, 6 चाबियां बनानी है या आप आसानी से बना सकते हैं इंशाल्लाह। साथ साथ कंप्लीट कर रहे हैं ना आप लोग, पेंडिंग नहीं करना काम को, ताकि इंशाल्लाह ये हम फाइनल से पहले पहले जमा भी कर लें अपने पास, ताकि चेक भी हो जाए, चेक हो कि आपको वापस भी मिल जाए। ठीक हो क्या जी। यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट हो गई। ऐ अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, वरना फिर हम इसको क्लोज कर दें। अच्छा सिस्टर मुझे पूछना है, जी जी पूछिए। ये अभी आपने ये जो चाबियां करवाई है ना सामिया के टेबल पे खासिरा की, जी जी तो इसमें जो मेरी बुक है ना उसमें मफूल दिया हुआ है मकसूर, लेकिन आपने अभी करवाया है कि उसमें नहीं है, मफूल नहीं है। जो ये ना ग्रामेटिकली बन जाते हैं, लेकिन ये यूज अ- नहीं हुए हुए, ये कुरान पाक में कहीं इस्तेमाल नहीं हुए हुए। अच्छा अच्छा। समटाइम्स ये भी हो जाता है कि आपको जैसे हम क्लास में करवा देते हैं, पूरा हमने टेबल करवा दिया, हमने उसको मफूल को करवाया ही नहीं, लेकिन जब आपका होमवर्क आता है तो उसमें वो जैसे मकसूर लिख भी दिया जाए, ऑप्शन भी दे दिया जाए कि इसमें मफूल बनाए, तो फिर आप चूज कर लिया करें। क्योंकि अगर हम इसको एक रवानी के लिए बनाते हैं ना, जब जैसे कि हमारा वो रिदम ना टूटे, 6 चाबियों वाला हमारा वो टूटे ना, फिर हम उसमें मफूल बना लेते हैं। जी जी इसमें एक एक यानी छोटा कि सा, जी यानी कि ठीक है। हाँ जी 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 बोलिए। देखिए जिसमें ना फाइल यानी कि काम करने वाले का असर अपने ऊपर जब पड़ता है ना, तो फिर उसको मफूल की जिनके जरूरत हमने नहीं नहीं होती। बनाए थे वो उनके यूज नहीं होते। जैसे हमने कहा था ना, वो मरा, अब जो मरता है बस वही मरता है, ठीक है, किसी पे इसका कोई असर नहीं होता, इसलिए हम इसका मफूल नहीं बनाते। अब ये जो खासिर है ना, खासिरुन, जिसको नुकसान होता है बस उसी को होता है, इसका असर किसी पर नहीं पड़ता। ठीक हो गया जी। जो जिसका नुकसान हुआ, हमदर्दी होती है, ठीक है, सबकी हमदर्दी होगी उसके साथ, लेकिन असर सिर्फ उसी के ऊपर ही पड़ेगा। ठीक हो गया। इसमें एक छोटा सा एक हिंट आप याद रख लें कि ज्यादातर, एक खिड़की हाँ हमने खुली रखनी, एक्सेप्शन आ जाया करती है कि जहाँ पे वो वाला तर्जुमा होता है, ज्यादातर वहां पर मफूल यूज नहीं हुआ था। ठीक हो गया जी। कौन सा वाला तर्जुमा होता है? अब वो वाला, वो मरा, वो वो वाला ये आपने आया, बताया था बिल्कुल सही। वो गया। हाँ जी। ठीक है ना, इसमें वो वाला तर्जुमा हो। मोस्टली क्लासेस में या वो टीचर्स गिरा, ने वाला तर्जुमा कहते हैं ना, कि अगर मफूल की उस जरूरत। ने वाला तर्जुमा होगा तो फिर मफूल होगा। मुझे ये आसान लगता है हम्म कि आप वो वाला देखें हम्म कि वो मरा, पता भी चल जाता है ना कि अगर अच्छा। जैसे माता है वो मरा है, जी इस जी। तरह से आता वो आया। अब जो आया है किसी पे इसको क्या फर्क पड़ेगा, किसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वो आया, ठीक है, आया, बैठा, उसने काम सही। किया या कुछ भी, इसका किसी और पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ असर पड़ेगा जब वो किसी को उठा के बैठ जाए, अच्छा सही है ना, कि उसके आने का किसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इस तरह से उनके सही है। मफूल नहीं होते। इसको बेहतरीन एक और हल है याद रखने के लिए, एक पेज पे लिख ले ये तो वाले जो, जी जी बताइएगा। ये वाले फेल वो वाले कहलाते हैं ना जो जिनको जो खुद में ही पूरे होते हैं, जैसे हाँ जहाबा वो गया, इस हाँ, जो तरह। खुद में पूरे होते हैं, इनके कुछ क्योंकि नाम वो पता है, कहीं वो और आगे मैं पढ़ रही सीखेंगे। हूँ ना, तो अभी वो हाँ यही बता खुद में ही हाँ, पूरे होते हैं। खुद में ही जी मुकम्मल हो जाते हैं जी जी। जी इनके सही। नाम भी होते हैं, हम आहिस्ता ठीक आहिस्ता है। आगे बढ़ेंगे ना,
अभी से फिर आपको फिक्र पड़ हाँ जाएगी कि हम उसको अलहदा से याद कर लें, हम आगे बढ़ते जाएंगे, याद करते जाएंगे, सही इंशाल्लाह। या फिर वो याद रहता भी है। सही। ठीक है ना? सिस्टर एक क्वेश्चन और है जी जी इसी हवाले से ना, ये देखिए हमने ये जो यकसा हरूफ वाले अफ़आल थे ना उसमें पढ़ा था, दल्ला जो है हाँ जी, उसमें जो उन्होंने ये खर्रा का दिया हुआ था ना, पूरा हाँ टेबल हाँ करना है हाँ हाँ खर्रा, तो उसमें ये क्वेश्चन भी आया हुआ था अभी जो होमवर्क पिछले दिनों गुजरा है ना, उसमें उसमें फेले अमर जो है ना वो जो बुक में दिया हुआ है ना वो इखरिर है, इखरिर, लेकिन उसका ऑप्शन नहीं था होमवर्क में, वो होमवर्क में इसका ऑप्शन जो था वो मेरा ख्याल में वो खिर्रा था, खिर्रा, हाँ। तो इसमें फर्क था, उसमें मैं खुद बड़ी कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि मैंने उसको वो दिल्ला के जो था ना उसके वजन पे मैंने उसको टिक लगा दी, वो शुक्र है वो ठीक तो हो गया, लेकिन अब इसमें ठीक कौन से वाला होगा, जो ये बुक में देखिए दिया हुआ है वो वाला या? ये देखिए मैंने लिख भी दिया। जी जी। ठीक हो गया। इसी तरह से हमारा इखरिर, एक हाँ जी। टेबल जन्ना भी है ना, तो इसका हम क्या करते हैं, जुन्ना, हम इसका यही बनाते हैं ना, जुन्ना, फेले अमर बनाते हैं। जी जी। इसका उजुनुन भी हो सकता है आपको कहीं ये भी नजर आ जाए, उजुनुन। ठीक हो गया जी। अब इदलिल और इखरिर बोल के देखिए, इसका वजन एक जैसा लग रहा है, यानी कि दल्ला या दिल्लू, दिल्ला कहें या इदलिल कहें, दोनों ठीक है। खर्रा या खिर्रू, खिर्रा कहें या इखरिर कहें, दोनों ठीक है। ठीक हो गया जी। अच्छा। जन्ना या जुन्नु, जुन्ना कहें या कहें जन्ना या जुन्नु, उजुनुन, दोनों तरह ठीक है। लेकिन उसमें पता है फिर क्या करना है, जब आपने इसकी जमा बनानी है ना, तो फिर आपने जमा भी इसी तरह की बनानी, ये नहीं करना कि एक आप इदलिल कर लें और उसका फिर द्वल्लु कर लें, ऐसे नहीं होगा। तो क्या जी, अगर हमने इदलिल लिखा ना तो फिर हम इदलिलू ही लिखेंगे। फिर इसका जब हम लिखेंगे ला तदलिल, ठीक है, ये क्या किया हुआ है, ये लाम को खोला हुआ है। और अगर हम ये दुल्ला वाला करेंगे तो हम करेंगे ला तदिल्लु, और इसी तरह से ला तदिल्लु, ताकि चारों एक जैसे हों, मकसद कहने का ये है। ठीक हो गया जी। अगर हम लिखते हैं इखरिर, इखरिर इखरिरू, ला तखरिर ला तखरिरू, अगर लिखते हैं खिर्रा खिर्रू, ला तखिर्रा ला तखिर्रू। ठीक हो गया जी। अब आपकी कंफ्यूजन दूर हुई? जी सिस्टर, इसी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह, हो गई, इसी हद अल्हम्दुलिल्लाह। तक हुई है। इसको ये इस तरह से पूरी दूर हो जाएगी, आप ये टेबल बना के मुझे दिखाएं। और एक दफा जी ठीक। इसका चाहे बिल्कुल सिर्फ फेल अमर ही बना लें, फेल अमर बना लें, इसका वही चारों सीखे, फेल अमर के और नहीं के, फिर ये और अच्छी तरह समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। कि और कोई किसी का क्वेश्चन हो तो कर लीजिए, वरना फिर हम इसको क्लोज कर लेंगे।